وعلیکم السلام۔ حضور حدیث کے بارے میں سوال ہے، مجھے حدیث کے اصل الفاظ اور حوالہ تو نہیں میرے پاس، لیکن سنا ہوا ہے شاید امام صاحب کو یاد آ جائے، بتائیں۔ کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں، درمیان میں مہدی اور آخر میں مسیح ہوں گے۔ درمیان میں مہدی کا لفظ ہے، انا اولھا والمسیح ابن مریم آخرھا۔ یہ بعض علماء ایک درمیان میں مہدی والی روایت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر مجھے تفصیلی تحقیق کا موقع نہیں ملا۔ یہ جو روایت ہے نا، جو پہلے والی جو میں نے بیان کی ہے، انا اولھا والمسیح ابن مریم آخرھا، یہ تو قطعی ہے، تو مضبوط دلیلوں کے ساتھ، استنباط کے ساتھ ہم بیان پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر درمیان میں مہدی والی روایت بھی ہو تو اس میں کوئی بھی مذاقہ نہیں، کیونکہ باقی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مہدی پہلے ہے اور مسیح بعد میں ہے۔ مہدویت کا نزول پہلے ہوگا، مسیحیت کا بعد میں ہوگا، اور بیان ہی اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ مسیحیت کا دعویٰ آپ نے بعد میں کیا ہے 1901 میں یا 1891 میں، 1891 میں، ہاں 1891 میں، اور مہدویت کے دعوے پر ہی ماموریت کی بنیاد تھی آپ کی۔ اسی لیے نہیں جی، 1894 میں تو ہوا ہے چاند سنت کا گرہن، مسیحیت کا 1901 کا ہے دعویٰ، نبوت اور مسیحیت دیکھیں ذرا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، مہدویت کا اس وقت تھا اصل تنازع مہدویت کے موضوع پر تھا، مسیحیت کے موضوع پر نہیں تھا۔ اس لیے چاند سورج کی گواہی نے ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام مہدی ہیں۔ 1891 میں جو واقعہ ہوا ہے وہ آپ کی بات ٹھیک لگتی ہے، اس میں مسیحیت کے دعوے کا بنیاد ڈالی گئی ہے۔ دیکھیں اصل ہے نا آپ کے پاس حوالے، آپ رکھا کرتے ہیں ایک حوالوں کی کتاب، کہاں گئی آج؟ اس میں یہ تاریخی میں دیکھ لیتا ہوں، تاریخ کا حوالہ ابھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ 1901 کا جہاں تک تعلق ہے اس میں امتی نبوت کھل کر پیش کی گئی ہے، اور حقیقت الوحی کی تصنیف کب کی ہے؟ اس کے بعد کی ہے، 1901 کے بعد، 1901 کے بعد شائع ہوئی ہے، یا 1901 کے آخر پر، جس میں 1901 والا جو دعویٰ ہے امتی نبوت کا وہ خوب کھول کر پیش کیا گیا حقیقت الوحی میں۔ اس لیے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ 1901 میں مسیحیت کا نہیں بلکہ نبوت کا دعویٰ تھا، جو مسیحیت کے دعوے ہی کی ایک شاخ ہے اصل میں۔ اس کی وضاحت ہوئی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہوئی ہے وضاحت کی کہ حضرت مسیح علیہ السلام مسیحیت کے الہامات کے باوجود اپنے انکسار کی وجہ سے اس کی تشریحات فرماتے رہے، اور یہ ایک فرماتے رہے، لکھا ہوا ہے آپ نے خود کہ میں ایک عام امتی ہوں، مجھے نبی سے کیا نسبت ہے۔ اس لیے جہاں مجھے مسیح فرمایا گیا ہے، اس میں ایک محض پیار کا یا شفقت کا اظہار ہوگا، یہ آپ لکھ چکے ہیں۔ اس نفسیاتی الجھن کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کثرت سے نبوت کے الفاظ استعمال فرمائے۔ بتایا گیا کہ مسیح تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی نہ ہو، اور یہ جب بات کھل گئی تو اور بھی مضمون روشن ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے تعلق میں نبی نہیں فرمایا کہیں، لیکن مسیح کے تعلق میں نبی فرمایا ہے۔ مسیح نبی اللہ یہ کرے گا، مسیح نبی اللہ، آنے والے مسیح کے متعلق نبی اللہ کے لفظ مسلم میں 4 دفعہ موجود ہے۔ تو اصل حقیقت یہ تھی کہ اگر مسیحیت کا دعویٰ کیا ہے تو نبوت کا لازم تھا، مگر اپنے طبی انکسار کے نتیجے میں اور یہ جو عقیدہ ورثے میں پایا ہوا تھا اس پہ تردد رہا، اور مانے وہ کرتے رہے جو ایک عاجز منکسر مزاج بندے کو کرنے چاہیے، کیونکہ خواہش کوئی نہیں تھی عہدے کی، اور اپنے آپ کو بہت ہی عاجز جانتے تھے۔ اس لیے جب یہ سلسلہ کچھ عرصے تک رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے
एक मौके पर फरमाया बारिश की, पहले तो मसीह को वाक़यतन उन मानों में मानते नहीं थे ना, मानते तो थे, मतलब है कि ताबीरें करते थे। फिर फरमाया बारिश की तरह मुझ पर वही नाजिल हुई, और फिर नबूवत वाला मसला हल हो गया जब आपको समझा दिया गया कि उम्मती नबूवत कोई अलग नबूवत का दावा नहीं है, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ही का तसलसल है और आपके ताबे रहकर तसलसल है। तब आपको शरह सदर हुआ और 1901 तक ये मजमून खूब खुल गया। चुनाचे जब 1901 में किताब लिखी गई है तो जाहिर बात है कि 1901 से पहले कुछ अर्सा से ये मजमून खोला जा रहा था। एक लम्हे में तो हकीकतुल वही नहीं उतरी है, क्योंकि उतरने वाली किताब नहीं है, इसके मजमून उतरते रहे एक लंबे अरसे से। फिर यूं बनेगा कि 1899 में जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जमात की बुनियाद डाली तो वो उस मामूलियत के दावे पर थी जो महदवियत का मुतबादिल था। चुनाचे उस शुरू में मैंने एक दफ़ा अल्फाज पढ़ के सुनाए थे एक मजलिस से सवाल जवाब में, वहीं से महदवियत का मजमून शुरू हो चुका है, उसका जिक्र आना शुरू हो जाता है। 1894 में मसीहियत बीच में आ चुकी थी, 1891 में मसीहियत का दावा हो चुका था और मुखालफत शुरू हो गई थी, लेकिन चांद सूरज के ग्रहण को मसीहियत के ताल्लुक में बयान नहीं किया गया। उलमा ने भी महदवियत की निशान का तकाजा किया था, अल्लाह ने भी महदवियत के निशान के तौर पर दिया, ठीक है, और मसीहियत का भी वो निशान था दरअसल, क्योंकि हज़रत मसीह की पेशगोई थी कि जब मैं दोबारा आऊँगा तो चांद और सूरज अंधेरा हो जाएंगे, और वो जो वो मजमून है वो दरअसल मसीहियत के साथ ताल्लुक़ रखता था, मसीह सानी की निशानी। जब ये सोचें तो पता लगता है कि मसीहियत का दावा से पहले ज़रूरी था। आमतौर पर हमारे उलमा महदवियत के सबूत में ही उस दलील को भी शामिल कर देते हैं कि चांद सूरज की ग्रहण की पेशगोई मसीह ने की हुई थी, हालांकि मसीह ने चांद सूरज के ग्रहण की पेशगोई अपनी आमद सानी के ताल्लुक में की है, महदवियत के ताल्लुक में नहीं की। महदवियत के ताल्लुक में हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई। तो मज़मून ये बना कि महदवियत का दावा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बरह रास्त ताल्लुक रखता था, उसमें और मुशाबियत की कोई बहस नहीं थी, वो पहले हुआ है। और उस दावे की तायीद में 94 का निशान अव्वल तौर पर ज़ाहिर हुआ। इस अरसे में मसीहियत का दावा भी हो चुका था, और मसीहियत के दावे के लिए मसीह की निशानी ज़रूर पूरी होनी चाहिए थी जो उसने अपनी पेशगोई में बयान फरमाई थी। तो वो फिर 1894 में वो भी पूरी हो गई, समझ गए। अब अव्वल हा व आखिर हा वाली बहस आ गई। उस हदीस को के अल्फाज मेरे सामने मुअय्यन नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं, मगर मुझे याद पड़ता है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि गैर अहमदी उलमा इसको भी पेश करते हैं हमारे खिलाफ दलाइल के तौर पर कि दरमियान में वो समझते हैं किसी वक्त होगा, हालांकि वो भूल जाते हैं कि दरमियान से ये मुराद नहीं है उसका ज़माना और मसीह का ज़माना आपस में कट कर अलग हो गया, बल्कि बिला इश्तिबा मुसलसल यही मजमून चलता है कि महदी के होते हुए मसीह उतरेगा। बस अगर महदी के होते हुए मसीह उतरेगा और वो दोनों एक ही वजूद के दो नाम हों तो इससे क्या इस्तेमाल होता है कि लाजिमन महदियत का दावा पहले और मसीहियत का बाद में। एक वजूद के दो नाम का ख़ती सबूत इब्न माजा की हदीस में है कि लल महदी इल्ला ईसा, और उस ज़माने की हदीस है, अव्वल तो इब्न माजा मुस्तनद किताब उस ज़माने की हदीस है जबकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि महदी और ईसा एक होंगे। आमद नास में से भी कोई नहीं सोच सकता था, उलमा में से भी कोई नहीं सोच सकता था। उस वक्त तकरीबन सबका ये रुझान था कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, और जिनका ये रुझान नहीं भी था वो मौत की बातें करते थे। उन्होंने महदी के साथ ईसा को कभी भी नहीं मिलाया। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के इशारे करते थे कि वफ़ात हो चुकी है, लेकिन
एक आलिम की बहस भी मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने ये कहा हो कि ईसा चूँकि वफात पा चुका है इसलिए वो ईसा लक़ब पाने वाला ईसा होगा और ये महदी ही का लक़ब होगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये पहले नहीं गुजरा। लेकिन इब्ने माजा में ये हदीस कहाँ से आ गई? फिर जाहिर है कि इब्ने माजा की हदीस लाजिमन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, किसी एरे वैरे का दिमाग वहाँ पहुँच ही नहीं सकता इस बात को। ना साबित है तारीख से कि कभी किसी पुराने आलिम को ये ख्याल आया। बस ये हदीस जो इब्ने माजा की है ये कती है, और अगर ये कती जैसा कि मैंने बयान किया कती है तो फिर उस मजमून के ऊपर और रोशनी पड़ गई जो पहले अपनी ज़ात में ही साबित शुदा है दरअसल तो, कि महदी का दावा पहले है, मसीहियत का बाद में है। बस मसीहियत का दावा क्योंकि आसमान से ताल्लुक़ रखता है इसलिए नुज़ूल है उसका, किताबें भी नाजिल होती हैं, नबी भी नाजिल होते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल हुए, उन मानों में नुज़ूल होगा। तो दरमियान में तो आ गए फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मसीहियत के नुज़ूल के दरमियान महदी मौजूद हैं। हमारा ईमान तो यही है। ईमान तो यही, तो तभी तो मैं बता रहा हूँ। और आप सबूत में आ गए थे, मैंने सबूत दिए खोल के। ये समझते हैं कि मैं समझा गलती से क्योंकि ईमान बिगड़ गया। मुझे कोई शक नहीं पड़ा इस बात पे। ठीक है।